Today's lecture is on Q's data structure. Q is a linear data structure. Various languages provide facilities to build queues by using built-in data types. What is a queue? A queue is an ordered collection of items from which items may be deleted at one end, called the front of the queue, and inserted at the other end, called the rear of the queue. As the first element inserted into the queue is the first element to be removed, it is called FIFO list. FIFO is first in, first. Now, here in the picture, a queue is shown of various people standing in the library to get books, to get the books issued from the counter. So this first person indicates the front of the queue. This is the front end of the queue. The last person in the queue indicates the rear of the queue. What is the exact definition of queue? A queue is a data structure which has the unique characteristic of being first in, first out collection. So queue क्या है? एक हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है which has a unique characteristic that the first item inserted is the first item to be pulled out. Or in another way, we can define a queue, a linear structure which follows a particular order in which the operations are performed. So the operations are performed in a particular order, that is insertion and deletion. The order is, particular order is first in, first out. That is, the first element inserted into the queue is the first element deleted from the queue, removed from the queue, pulled out from the queue. That is that first in. So queue is a FIFO structure, FIFO data structure, first in, first out structure. In the figure, there is a queue of maximum that can take maximum 7 elements. 5 elements are inserted into the queue. The front of the queue is the first pointer, this one. 1 is the front of the queue. The fifth number is the rear of the queue. Triple E is not a rear, it is element standing at the rear of the queue. This is the triple A is the element standing at front of the queue. The front value is 1, the rear value is 5. What are the characteristics of a queue? Like a stack, queue is also an ordered list of elements. So queue is an ordered list of elements of similar data type, of homogeneous data type. So all the elements are of a same type. It is not a mixture of more than one data type. Second characteristic is
Queue is a FIFO structure, that is first in, first out. Whereas a stack is a LIFO structure, last in, first out. Next, third characteristic, once a new element is inserted into the queue, all the element inserted before the new element in the queue must be removed to remove the new element. So if you want to delete the currently added element from the queue, you have to delete all the elements that are previously inserted before this element. ठीक है जी. We have a peek function which is used to return the value of the first element without deleting it or dequeuing it. Deletion को हम dequeuing भी कहते हैं, insertion को हम unqueuing भी कहते हैं. आगे आ जाएगा. So peek, there is a function named peek which is used to return the first element, that is the front element of the queue, without deleting that element. So these are the four important characteristics of queue. We can also say the features of queue, linear queue, or simply we can say queue. Now what are the applications of queue, where these queues are used? So queue is used whenever we need to manage any group of objects in an order in which the first one coming in also gets out first while the others wait for their turn. So कहता क्यू क्या है, क्यू का या कहाँ यूज होती है, जब हमने when we have to manage the objects, और ऑब्जेक्ट्स को भी किसी ऑर्डर में मैनेज करना है जहाँ पे जो पहला एलिमेंट आ रहा है वही पहला एलिमेंट होगा जो उस ग्रुप को लीव करेगा, तो वहाँ पे हम क्यू को यूज करते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन, सर्विंग रिक्वेस्ट ऑन ए सिंगल शेयर्ड रिसोर्स लाइक ए प्रिंटर, CPU टास्क शेड्यूलिंग एटसेट्रा. सो अगर आप प्रिंटर को 3-4 कमांड दे देते हैं, 3-4 कमांड अलग अलग दे देते हो कंप्यूटर से प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंटर क्या करता है, उन कमांड्स को क्यू में लगा लेता है, तो 1 बाय 1 क्यू को क्या कहता है, सर्विस देता है. सो सिंगल शेयर रिसोर्स, सिंगल रिसोर्स है, उसको शेयर्ड बेसिस पे अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे क्यू यूज़ की जाती है. सिमिलरली CPU को अगर आप मल्टीपल टास्क दे देते हो करने के लिए, तो CPU भी क्या करता है, टास्क को क्यू में लगा लेता है और उनको 1 बाय 1 क्या कहते हैं, सॉल्व करता रहता है. दूसरा, इन रियल लाइफ सिनेरियोज कॉल सेंटर फोन सिस्टम्स यूजेस क्यूज टू होल्ड पीपल कॉलिंग देम इन एन ऑर्डर. जब भी आप कॉल सेंटर पे किसी पे फ़ोन करते हो, किसी सर्विस सेंटर को, किसी कस्टमर केयर पे साइन करते हो, तो बहुत बार मैसेज आता है कि यू आर इन क्यू, वेट फॉर योर टर्न. ठीक है जी. द concerned person is listening to some other people or to talking to some other people. सो इस तरीके के आपको कॉल करते हैं. कॉल सेंटर के अंदर जो फ़ोन सिस्टम है वो भी क्यू यूज़ करते हैं टू होल्ड पीपल जो उनको कॉल करें, अनटिल ए सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इज फ्री. तीसरा जी, हैंडलिंग इंटरप्ट्स इन रियल टाइम सिस्टम्स. इंटरप्ट्स अगर आ जाते हैं, रियल टाइम सिस्टम होते हैं जो जिनको रिस्पॉन्स टाइम जिनका बड़ी क्विक होता है, तो वहाँ पे भी अगर आप बीच में कोई इंटरप्शन आती हैं
तो उनको हैंडल करने के लिए भी क्यूज यूज की जाती हैं। द ट्रिप इंटरप्ट्स आर हैंडल्ड इन द सेम ऑर्डर एज दे अराइव, जिस ऑर्डर में वो आते हैं उसी ऑर्डर में वो हैंडल किए जाते हैं। दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो इंटरप्ट पहले आया, जो एरर पहले आई उसको पहले सॉल्व किया जाएगा, जो बाद में आई उसको बाद में सॉल्व किया जाता है। फिर एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि क्यू और स्टैक में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। सो अब तक हम देख चुके हैं, दो तीन तो बड़े कॉमन से हमें नज़र आए। पहला, स्टैक एक लीफो स्ट्रक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और क्यू एक फीफो डाटा स्ट्रक्चर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक के अंदर इंसर्शन एंड डिलीशन है, वो वन एंड पे होती है, जिसको मैं टॉप ऑफ द स्टैक कहता हूँ। क्यू के अंदर इंसर्शन टेक्स प्लेस एट द रियर, डिलीशन टेक्स प्लेस एट द फ्रंट। डिलीशन स्टार्ट आगे से होगी, इंसर्शन लास्ट एंड पे होगी। तीसरा, इट हैज़ ओनली वन पॉइंटर वेरिएबल, एक पॉइंटर वेरिएबल है, दैट इज टॉप। इसके अंदर दो पॉइंटर वेरिएबल्स हैं, टू पॉइंटर वेरिएबल्स क्यू हैज़, दैट इज फ्रंट, वन इज फ्रंट, अनदर वन इज रियर। ये आपके सामने लिखा हुआ। स्टैक्स के अंदर कोई मेमोरी वेस्टेज नहीं होती, क्यूज के अंदर मेमोरी में भी वेस्टेड। स्टैक्स के अंदर दो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, एक पुश जनरली जो है, एक पॉप। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्यू के अंदर एन क्यू यानी कि इंसर्ट क्यू, क्यू में इंसर्ट करना एलिमेंट को, और डी क्यू एलिमेंट क्यू में से डिलीट करना। इन अ कंप्यूटर सिस्टम इट इज यूज्ड इन प्रोसीजर कॉल्स। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब प्रोसीजर्स को कॉल करते हैं, फंक्शंस को कॉल करते हैं, तो स्टैक को यूज़ किया जाता है। रिकर्शन के अंदर स्टैक्स को यूज़ किया जाता है। ठीक होगी जी बात। रिकर्सिव फंक्शंस को जब कॉल करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम इज इन कंप्यूटर सिस्टम इट इज यूज्ड इन टाइम एंड रिसोर्स शेयरिंग। सीपीयू शेयरिंग करनी हो या प्रिंटर की शेयरिंग करनी हो मल्टीपल यूजर्स द्वारा, तब क्यू को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, प्लेट काउंटर एट ए मैरिज रिसेप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। अगर आप शादी पे कहीं गए हो तो जो प्लेटें रखी होती हैं वो स्टैक की फॉर्म में रखी होती हैं। और अगर आप रियल लाइफ में क्यू की बात करें एग्जाम्पल की, तो स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन ए लाइन एट फी काउंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यू। सो ये हमारे पास 7 डिफरेंसेस हैं बिटवीन स्टैक एंड क्यू। एग्जाम्पल देख लेते हैं लीनियर क्यू की। ये हमारे सामने अगर हम बात करें तो ये एक क्यू दी हुई है 7, जिसके अंदर एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप देखें, रियर की वैल्यू 4 है, फ्रंट की वैल्यू 1 है। रियर की वैल्यू 4, फ्रंट की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होल्ड किए जाते हैं, 7। अब हमने 20 को इंसर्ट किया, 20 यहाँ पे इंसर्ट हो गई, 20 आप देख लीजिए 5th नंबर पे इंसर्ट हो गई, तो रियर की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, दैट इज 5, फ्रंट वहीं का वहीं। फिर हमने डिलीट कर दिया फ्रंट एलिमेंट, फ्रंट एलिमेंट डिलीट कर दिया, तो ये 10 डिलीट हो गया। 10 डिलीट हो गया तो आप चेक कर लीजिए 1 पे स्पेस खाली होगी, तो फ्रंट की वैल्यू कितनी होगी, फ्रंट इंक्रीमेंट करना, फ्रंट की वैल्यू 2, रियर की वैल्यू 5 की वैल्यू। सो जब हम डिलीट करेंगे, व्हेन वी डिलीट द एलिमेंट, फ्रंट इज इंक्रीमेंटेड, व्हेन वी इंसर्ट द एलिमेंट, रियर इज इंक्रीमेंटेड। तीसरे के अंदर फिर हमने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया फ्रॉम द क्यू, ठीक है जी, डिलीट फ्रंट एलिमेंट, तो ये 50 यहाँ से डिलीट हो गया, 50 डिलीट हो गया तो फ्रंट की वैल्यू 3 हो गई, रियर की वैल्यू 5। फिर हमने 60 इंसर्ट कर दिया, 60 इंसर्ट किया तो 6th पोजीशन पे 6 इंसर्ट हो गया, रियर की वैल्यू 6 हो गई, फ्रंट की वैल्यू 3 की 3। सो दीज आर द example of queue, or we can say linear queue. Linear means it is a straight line data structure. That is linear element in a linear order. Now, how the queue data structure
can be implemented in the memory. So queue can be implemented in two ways. The first one is static or array implementation of queue. The second one is dynamic linked list implementation, pointer implementation of the queue. So there are different names for dynamic, linked list, pointer. These are so. In this lecture, we will discuss the static when we learn about the linked list implementation. Then we discuss about the linked list implementation of the queue. So the easiest way of implementing a queue is using an array. So initially, the head or front and the tail and rear of the queue points at the first index of the array, starting the index array of 0. So starting में क्या है, अब ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो हेड और टेल है यानी कि फ्रंट और रियर है उन दोनों की वैल्यू 0 हो अगर आप Q1 से शुरू कर रहे हो, जैसे कि यहाँ से Q1 से शुरू कर रहे हो। अगर आप Q का वैल्यू 0 से शुरू कर रहे हो तो स्टार्टिंग इंडेक्स दोनों का क्या होगा, -1 हो। ठीक है जी, क्योंकि 0 पे अगर दोनों होंगे तो एक एलिमेंट, इसका मतलब एक एलिमेंट है। तो अगर -1 होगा फिर नहीं। सो एज वी ऐड एलिमेंट्स टू द क्यू द टेल कीप्स ऑन मूविंग अहेड always pointing to the position where the next element will be inserted while the head remains at the first index. जो head है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। ठीक होगी जी बात, यानी कि फ्रंट वहीं पे रहेगा। अगर दोनों की वैल्यू 0 0 हम कर दें, फ्रंट वहीं पे रहेगा, टेल इंक्रीज करता चले। स्टैटिक और अरे इंप्लीमेंटेशन अब हम देख लेते हैं। If a queue is implemented using array, the exact number of elements we want to store in the queue must be assured period. यानी कि हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि क्यू के अंदर अगर आप अरे यूज़ कर रहे हो तो अरे के अंदर कितने मैक्सिमम एलिमेंट की आप क्यू चाहते हो कि इतने एलिमेंट वो होल्ड करना। ठीक है जी, ये कंपलसरी है क्योंकि ये स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज द साइज ऑफ द अरे हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड at the design time or before processing starts. हमें स्टार्टिंग प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले बताना पड़ेगा कि अरे है वो कितने साइज का है। सो इन दिस केस द बिगिनिंग ऑफ द अरे विल बिकम द फ्रंट ऑफ द क्यू। अगर इस केस में क्या होगा, जो बिगिनिंग है अरे की वो बन जाएगा फ्रंट ऑफ द क्यू एंड द लास्ट लोकेशन ऑफ द अरे विल एक्ट एज द रियर ऑफ द क्यू। पहली है वो फ्रंट बन जाएगा, जो लास्ट है वो रियर बन जाएगा। द फॉलोइंग रिलेशन वी गिव्स द whole elements exist in the queue when implemented using array, that is rear minus front plus 1 से आपको पता चल जाएगा क्यू के अंदर कितने एलिमेंट हैं। रियर माइनस फ्रंट प्लस 1, इससे आपको आइडिया रहेगा। अगर रियर की वैल्यू फ्रंट से छोटी है, रियर की वैल्यू फ्रंट से क्या है, छोटी है, देन देयर विल बी नो एलिमेंट इन द क्यू और क्यू विल ऑलवेज बी एम्प्टी। अगर रियर की वैल्यू फ्रंट से छोटी है, रियर की वैल्यू फ्रंट से बड़ी है तो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, अगर रियर की वैल्यू फ्रंट से छोटी है तो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। क्यू हमारी खाली है, क्यू के अंदर एम्प्टी है, क्यू के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना आप। चलिए सी के अंदर लीनियर क्यू को कैसे इंप्लीमेंट करना है। कहता वी कैन यूज एन अरे टू होल्ड द एलिमेंट ऑफ द क्यू and use two variables, one is called front, another is called rear, to hold the positions within the array of the first and last elements of the queue. In C it is implemented as, C के अंदर इसको कैसे implement करना है, define max q 100। सो आप देख लीजिए, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हमें बताना है कि क्यू आप कितने साइज की क्यू चाहते हो, मैक्सिमम साइज बताना है आपने क्यू का। सो हमने यहाँ बता दिया क्यू इज ऑफ मैक्स कितनी है, 100 एलिमेंट, 100 एलिमेंट आप क्यू के अंदर डाल सकते हो। नाउ क्यू इज ए स्ट्रक्चर विच हैज टू डाटा आइटम्स, दैट इज एक आइटम्स नाम का अरे है जिसका साइज मैक्स क्यू है और वो इंटीजर टाइप का है, और दो वेरिएबल है फ्रंट एंड रियर, वो इंटीजर टाइप। दिस इज जस्ट अ डेक्लेरेशन ऑफ क्यू, इससे हमारी क्यू नहीं बन गई। ठीक है जी, जैसे इंट होने के साथ इंटीजर वेरिएबल होने के साथ इंट नहीं बन जाता, उसी तरीके से क्यू
स्ट्रक्चर होने से या क्यू डाटा स्ट्रक्चर होने से क्यू नहीं बन जाती, हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा. सो डिक्लेयर ए वेरिएबल ऑफ दिस type structure. So what we have, struct q. So this q is the actual q that has three things. One is items names, array named items whose size is max q, and two variables. One is front, another one is rear. So what are the basic operations that can be performed on linear queues? So insert operation that inserts item x at the rear of the queue. Operation remove या delete या dequeue that removes the element from the queue and assigns it to the x, deletes the front element from the queue and set its value x, set x to its content, x को इसके content प्लॉट कर दें. empty operation है हमारे क्यू पे, चेक कर सकता है, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, फॉल्स या ट्रू, डिपेंडिंग ऑन वेदर द क्यू इज एम्प्टी और क्यू कंटेन सम एलिमेंट्स. फिर फुल क्यू है हमारे पास, ऑपरेशन है दैट रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ये भी बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा वेदर द क्यू हैज एनी स्पेस और. ठीक है जी. चलिए सबसे पहले क्यूज को अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हम कन्वेंशंस देखेंगे कि कौन कौन सी कन्वेंशन है हमारे पास. हम दो कन्वेंशन यूज कर सकते हैं क्यू के अंदर. एक तो ये है कि जब हम क्यू को बनाना शुरू कर रहे हैं हम फ्रंट और रियर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू -1 कर दें, और जैसे ही पहला एलिमेंट आए दोनों की वैल्यू, एक बार पहले दोनों की वैल्यू इंक्रीमेंट की जाए, उसके बाद फिर जब अगला एलिमेंट इंसर्ट होगा तो सिर्फ रियर इंक्रीमेंट किया जाए, और जब एलिमेंट डिलीट होगा तो फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट की. दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, हम रियर की वैल्यू -1 कर दें और फ्रंट की वैल्यू 0 कर दें. इस केस में क्या होगा कि जब रियर की वैल्यू फ्रंट से छोटी होगी तो क्यू हमारी एम्प्टी होगी, ये है. और इस केस में क्या होगा, जब फ्रंट की वैल्यू -1 होगी और रियर की वैल्यू -1 होगी तो क्यू हमारी एम्प्टी होगी. ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है. ये कन्वेंशन है, हम इस कन्वेंशन को भी यूज़ कर सकते हैं, हम इस कन्वेंशन को भी यूज़ कर सकते हैं. चलिए एक बार एग्जाम्पल देखते हैं. ये 8 का भी आप 9 कह लीजिए या कॉन्टीन्यूटी में कितने भी कह लीजिए. ये हमारे पास एक क्यू दी हुई है, आइटम्स नाम का एरिया है, क्यू डॉट आइटम्स. अगर हम डिक्लेरेशन के हिसाब से तो ये इसका नाम है क्यू डॉट आइटम्स. इसके अंदर हमने 3 एलिमेंट इंसर्ट किए, तो ए बी सी. तो फ्रंट की वैल्यू 0 है, रियर की वैल्यू 2 है. फिर 2 एलिमेंट डिलीट कर दिए, फ्रंट और क्यू की वैल्यू सेम हो गई 2. ठीक होगी जी बात. और फिर हमने डी और ई इंसर्ट कर दिया, फ्रंट की वैल्यू 2 रह गई और रियर की वैल्यू 4 हो गई. तो ये हमारा कन्वेंशंस था और उसके हिसाब से हमने देखा कि एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करना है. ठीक है जी ना. अब हम चेक कर रहे हैं वेदर द लीनियर क्यू इज एम्प्टी और नॉट. तो यहाँ या तो हम क्या करें कि दो ऑप्शन है हमारे पास, दो एल्गोरिथम मैंने लिखे हैं, दोनों को देख लेते हैं. एम्प्टी नाम का फंक्शन है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और पी क्यू इज ए पॉइंटर टू ए क्यू विच इज ए स्ट्रक्चर. पी क्यू हमारा एड्रेस है, इसको हम एड्रेस पास कर रहे हैं किसका, क्यू का, विच इज ए स्ट्रक्चर. अब चेक कर रहे हैं, एक पी क्यू फ्रंट इक्वल टू पी क्यू रियर इक्वल टू -1. तो ये पहली कन्वेंशन, या आप ऐसे देखें दूसरी कन्वेंशन के हिसाब से है, जब फ्रंट और रियर की वैल्यू -1. सो if pq front equal to pq rear equal to -1 then return true else return false. यानी कि pq फ्रंट और pq rear की वैल्यू सेम है which is equal to -1, दोनों की वैल्यू -1 है, तो हम कह देंगे q हमारी एम्प्टी है, अदरवाइज q हमारी एम्प्टी नहीं. अब दूसरे केस में देख लेते हैं, जब हमने रियर की वैल्यू -1 रखी, फ्रंट की वैल्यू 0 रखी. So if PQ rear is less than PQ front, PQ rear की वैल्यू PQ front से छोटी है, then return true else return false. So ये हमेशा रहेगा. बीच में भी अगर कहीं हो जाएगा रियर की वैल्यू फ्रंट से छोटी हो जाएगी तो हम कह देंगे कि Q हमारी एम्प्टी है. बट इस केस में ऐसा नहीं होगा. इस केस में अगर बीच में कहीं Q हमारी खाली हो जाएगी तो हमें Q को पॉइंटर्स को, जो फ्रंट एंड रियर को, उसको -1 सेट करना पड़ेगा. इस केस में
दूसरे वाले इस वाले केस में हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इस वाले केस में हमें उनकी वैल्यू -1 सेट करनी पड़ेगी, रीसेट करनी पड़ेगी, आप ऐसे कह लीजिए। अब हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं एलिमेंट फ्रॉम द लीनियर क्यू। रिमूव नाउ वी हैव ए फंक्शन नेम्ड रिमूव which is returning an integer value. PQ is a pointer to a queue which is a structure. T is a temporary variable. So first we are checking whether PQ is empty. So अगर आप कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो तो पहले आप चेक करोगे कि क्या क्यू एम्प्टी है। अगर क्यू एम्प्टी है तो हमारे पास इसका मतलब है डिलीट करने के लिए कुछ नहीं है। सो इफ एम्प्टी PQ, इफ क्यू इज एम्प्टी तो वी से क्यू अंडरफ्लो और हम प्रोग्राम से क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं, PQ आइटम नाम के अरे के अंदर PQ फ्रंट जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उस एलिमेंट को हम T के अंदर डाल देंगे। PQ आइटम अरे के अंदर PQ फ्रंट जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू हम किसके अंदर डाल देंगे, T के अंदर डाल देंगे। अब जब एलिमेंट हमने वो T के अंदर डाल दिया, ठीक होगी जी बात। अब हमने चेक करना है कि भाई फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या होगी। अब चेक कर रहे हैं, अगर मान लीजिए यही एक एलिमेंट था जो और वही मैंने डिलीट कर दिया तो इसका मतलब है फ्रंट और रियर की वैल्यू हमें दोनों की -1 सेट करनी पड़ेगी। अगर हम कन्वेंशन यूज कर रहे हैं कि PQ फ्रंट की वैल्यू भी -1 है, PQ रियर की वैल्यू भी -1, तो इफ PQ फ्रंट इक्वल टू PQ रियर, दैट इज एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता था तो इसका मतलब फ्रंट और रियर एक ही, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर PQ फ्रंट इक्वल टू PQ रियर है तो मैं फ्रंट की वैल्यू भी -1 सेट कर दूंगा, रियर की वैल्यू भी -1 सेट कर दूंगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो मैं PQ फ्रंट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक होगी जी बात। जब एलिमेंट डिलीट किया जाता है तो फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी जाती है और क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न जीरो का जीरो रिटर्न करना है, नॉट T, इट इज रिटर्न 0 या रिटर्न 1 कर दीजिए, इट इज रिटर्न 1 यानी सक्सेसफुल हमारी ये बात सॉरी इट इज रिटर्न T, सॉरी। तो ये एलिमेंट जो हमने डिलीट किया था उसको हम रिटर्न कर देंगे, इट इज T, T इज द वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन T, sorry. Now we are inserting element in a linear queue. So we have a function named insert which is not returning any value. PQ is a pointer to a queue which is a structure. X is the element that we want to insert in the queue. So सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कहीं क्यू फुल तो नहीं है। इफ PQ rear इक्वल टू मैक्स क्यू -1, अगर रियर PQ rear है वो मैक्स क्यू -1 को पॉइंट कर रहा है देन वी से क्यू ओवरफ्लो एंड प्रोग्राम से हम क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है वी सिंपली इंक्रीमेंट PQ रियर प्लस, जब आपने एलिमेंट इंसर्ट करना है तो पहले रियर की वैल्यू इंक्रीमेंट की जाएगी फिर उस पोजीशन पे एलिमेंट डाला जाएगा। सो PQ रियर प्लस PQ रियर की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दी, फिर PQ आइटम नाम के अरे के अंदर जिसको PQ रियर पॉइंट कर रहा है उस पोजीशन पे x को कॉपी कर दो। PQ रियर की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट कर दी, फिर PQ आइटम नाम के अरे के अंदर PQ रियर जिस चीज जगह को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर एलिमेंट कॉपी कर दो और प्रोग्राम से एग्जिट कर जाओ। सो दिस इज हाउ वी कैन इंसर्ट द एलिमेंट इनटू द लीनियर क्यू। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लीनियर क्यू। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है हमारे साथ। अब मान लीजिए ये क्यू के अंदर मैं 3 एलिमेंट और डाल दूं तो ये क्यू मेरी फुल हो जाएगी, बट अगर आप ध्यान से देखें तो क्यू के आगे यहाँ पे ये एलिमेंट स्पेस बची हुई है, ये एलिमेंट ये स्पेस बची हुई है, यहाँ पे मैं एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकता क्योंकि फ्रंट के आगे एलिमेंट इंसर्ट नहीं किए जा सकते। ठीक है जी। सो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरे पास आखिर में एक ही एलिमेंट है और वो आखिर पे है, फ्रंट भी इसी को पॉइंट कर रहा है और रियर भी इसी को पॉइंट कर रहा है, तो n-1 मेमोरी लोकेशंस मेरी क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। सो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। सो कहता बाय द डेफिनेशन ऑफ ए क्यू व्हेन वी ऐड एन एलिमेंट इन अ क्यू रियर पॉइंटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 whereas when we remove an element from the front
pointers increased by 1, but in array implementation of queue this may cause problem as follows. इससे प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, मेमोरी वेस्ट होती है। चलिए देखते हैं कैसी मेमोरी वेस्ट होगी। इनिशियली क्यू मेरी एम्प्टी है, फ्रंट की वैल्यू 0 है, मान लीजिए रियर की वैल्यू -1 है। मैंने आपको बताया था रियर अगर फ्रंट से छोटा है तो क्या होगा, क्यू हमारी खाली होगी। नाउ when we add 5 elements to the queue, the state of queue becomes as follows. Front मेरा 0, फ्रंट हमारा 0 है और रियर हमारा 4 है। बिल्कुल बात क्लियर जी, जब 5 एलिमेंट ऐड करेंगे तो। नाउ सपोज वी डिलीट 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द क्यू, 2 एलिमेंट हमने क्यू में से डिलीट कर दिए, तो इस फिर क्यू की क्या स्टेट हो जाएगी, फ्रंट की वैल्यू 2 हो गई, क्यू की वैल्यू 4 की 4 रह गई। नाउ एक्चुअली वी हैव डिलीटेड 2 एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, so there should be space for another 2 element in the queue। 2 एलिमेंट डिलीट किए थे तो उनके लिए स्पेस बची हुई है, but as rear pointer is pointing to the last position and queue overflow condition, that is rear equal to size -1 is true, we can't insert new element in the queue even if it has empty spaces। क्यू के अंदर empty spaces होने के बावजूद भी हम नए एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो रियर है वो मैक्स क्यू -1 के ऊपर पहुंच गया। ठीक होगी जी बात। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम देयर इज अनदर वेरिएशन ऑफ क्यू दैट इज कॉल्ड सर्कुलर क्यू। हमने क्यू को क्या कर दिया, सर्कुलर कर बना दिया। ठीक है जी, फ्रंट और रियर को जोड़ दिया तो सर्कुलर क्यू बन गया। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।